our unit 2. Umbrellas are colorful. आप सबको पता होगा umbrellas मतलब छतरी, right? Colorful यानी कि रंगीन, तो रंगीन छतरीओ विषे आज આપણે ભણીશું. So first of all आज हम क्या करेंगे, पहले एक राइम हम गाते हैं, right? उसके बाद एक स्टोरी होती है. So let's open your book, open page number 36 and let's start the chapter. So पहले एक एक्टिविटी 1 है इन द जंगल. तो पहले मैं आपको एक बता के सुना रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ में. ओके. इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक I saw a tiger looking at the snack. In the jungle swimming with a smile I saw a big green crocodile. In the jungle roaring loudly I saw a lion sitting proudly. In the jungle driving down the path I saw hippopotamus taking a bath. In the jungle hanging on a tree I saw some monkeys laughing at me. In the jungle on a branch in a tree I heard some parrots talking to me. So ये था in the jungle वाली rhyme, right? So इसके बाद हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. इसमें एक बच्चा क्या करता है, जंगल में जाता है. जैसे वो जंगल में जाता है तो उसको जो जो चीजें दिखती है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है. सो फर्स्ट लाइन में लिखा है इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक. स्टैंडिंग मतलब कि उभा रहे. स्टैंडिंग मतलब उभा रहे. तो ये लड़का जहां पे खड़ा है नियर द लेक. लेक એટલે તળાવ. લેક એટલે તળાવ, right? I saw a tiger looking at a snake. I saw यानी कि मैं જોયું हो तो मतलब जब वो जंगल में गया तब उसने देखा. क्या देखा था? टाइगर लुकिंग एट अ स्नेक. टाइगर એટલે કે વાઘ. લुकिंग એટલે જોઈ રહ્યો છે. એટ અ સ્નેક. સ્નેક એટલે સાપ. સ્નેક એટલે સાપ. કે मैं જોયું તો શું કે એક વાઘ જે છે એ સાપની સામે જોઈ રહ્યો છે. Second line, in the jungle swimming with a smile I saw a big green crocodile. जंगल में जब मैं गया तो मैंने क्या देखा? Swimming with a smile. Swimming मतलब तरबू. Swimming मतलब तरबू अथवा तो तरी રહ્યો છે. With a smile. Smile मतलब हास्य સાથે. કોણ તરી રહ્યું છે? I saw मतलब मैंने देखा big green crocodile. crocodile એટલે મગર. crocodile એટલે મગર. તો मैं શું જોયું કે સ્માઈલ સાથે પાણીમાં એટલે કે તળાવમાં તરી રહેલો મગર જોયો. અને એ કયા રંગનો હતો? યસ, ગ્રીન કલરનો. ઇટ મીન્સ કે લીલા કલરનો. In the jungle roaring loudly. roaring એટલે गर्जना करवी. loudly मतलब मोटेથી. तो मैंने क्या देखा? जोर से गर्जना करते हुए. तो गर्जना कौन करता है? लायन એટલે કે સિંહ. तो roaring मतलब गर्जना करवी. आपने देखा होगा कि लायन, टाइगर ये गर्जना करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं. roaring loudly. loudly એટલે મોટેથી. right? I saw a lion sitting proudly. मैं શું જોયું કે સિંહ જે છે એ proudly એટલે કે ગર્વથી બેઠો છે અને મોટેથી ગર્જના કરી રહ્યો છે. so proudly मतलब गर्वથી. जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व होता है. मतलब एकदम बट आ जाता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है. In the jungle driving down the path I saw a hippopotamus taking a bath. जैसे जंगल में मैं नीचे से जा रहा था तो मुझे क्या दिखा? हिपोपोटामस दिखा. taking a bath. taking a bath मतलब નાઈ રહ્યો હતો. સવારે જેમ આપણે નાઈએ છીએ તેમ હિપોપોટેમસ નહાતો હતો.
jungle hanging on a tree I saw some monkeys laughing at me. In the jungle, जब जंगल में गया तो उसको क्या दिखा? हैंगिंग. हैंगिंग मतलब लटकता. कौन लटकी रही हो तू? तो આપણને ખબર જ છે કે ઝાડવા ઉપર કોણ લટકે? યસ, વાંદરાઓ એટલે કે monkeys. तो monkeys लटक रहे थे. तो वो क्या कर रहे थे? हैंगिंग ऑन अ ट्री I saw some monkeys laughing at me. laughing એટલે હસી રહ્યા હોય. जैसे कि वो पास ऑन हो रहा था और उसको लगा कि जो मंकीज ट्री के ऊपर लटक रहे हैं वो मुझे देखकर एकदम से हंस रहे हैं. In the jungle on a branch in a tree. जंगल के अंदर on a branch. branch એટલે કે ડાળી. branch मतलब ડાળી. आप सबको पता होगा ट्री है यानी कि झाड़ होता है यानी पेड़ होता है. तो पेड़ की डालियां होती है. तो राइट, ब्रांच मतलब डाली. तो झाड़नी डाली ऊपर कौन होતું? I heard some parrots talking to me. I heard मतलब मैं સાંભળ્યું. some parrots એટલે પોપટ. talking to me એટલે મારી સાથે જાણે વાતો કરતા હોય એવું મને લાગતું હતું. तो उसको क्या फील हुआ कि ट्री की जो डालियां उसके ऊपर पैरट्स बैठकर बातें जैसे मुझसे कर रहे हो वैसा उसको फील हुआ. तो ये था पूरी राइम. अगर आप समझते हो तो राइम कि एक बच्चा पूरे जंगल में जाता है तो उसने कितनी सारी चीजें देखी, कितने एनिमल्स उसने नोट डाउन की. तो हम एक बार सारे एनिमल्स के नाम फिर से रीड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या देखा? टाइगर देखा. टाइगर के बाद स्नैक देखा. उसके बाद उसने देखा क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल એટલે मगर. उसके बाद उसने देखा कि लायन रॉर यानी कि गर्जना कर रहा है. उसके बाद देखा हिप्पोपोटामस. वो क्या कर रहा था? यस, नहा रहा था. फिर मंकीज. और मंकीज क्या कर रहे थे? ट्री के ऊपर हैंग हुए थे. एंड लास्ट में उसको क्या दिखा? पैरट्स दिखे. और पैरट्स क्या कर रहे थे? जैसे कि उसके साथ बातें कर रहे हो. ओके, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी. जैसे कि आप मेले में गए हैं, राइट? तो मेले में आप लोगों ने क्या देखा होगा? यस, बहुत सारी अच्छी अच्छी राइड्स देखी होगी. और आई होप के सारे राइड्स में बैठे ही होंगे. सो जैसे कि चकडोर बोलते हैं, राइट? बोट होती है. ऐसे बहुत सारी राइड्स आपने देखी होगी, राइट? सो उसी के बारे में आज हम एक दूसरी स्टोरी थोड़ी सी पढ़ेंगे. सो एक्टिविटी 4 का नाम क्या है? अ लवली फेयर. फेयर એટલે કે મેળો. सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. आई होप आप लोग बुक्स लेके बैठे होंगे साथ में. बख्शीपुर इज अ स्मॉल विलेज. स्मॉल એટલે કે નાનું. બક્ષીપુર નામનું એક નાનું ગામડું છે. There is a fair in the village today. आज गांव में क्या है? मेला लगा है यानी कि गांव में मेળો भरायो છે. It is on the river bank. river bank मतलब नदी किनारो. river मतलब नदी અને bank એટલે કે કિનારો. તો river bank मतलब नदी किनारो. तो मेળો क्या भरानो છે? नदी किनारे. ओके, so men, women and children are in the fair. Man, woman, man એટલે કે પુરુષો, woman એટલે કે સ્ત્રીઓ અને children એટલે કે બાળકો. ये सारे कहाँ जाने वाले हैं? मेले में जाने वाले हैं. Look at the shopkeepers. Shopkeepers, आपने देखे होंगे कि मेले में बहुत सारी दुकानें होती हैं. तो दुकान को जो संभालता है उसको क्या बोलते हैं? शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदारों. ओके, देयर शॉप्स आर स्मॉल. और जैसे दुकानदार है तो उनकी शॉप्स कैसी है? एकदम छोटी सी है. देयर आर टॉय शॉप्स एंड फ्रूट शॉप्स इन द फेयर. वहाँ पे किसकी शॉप है? टॉय यानी कि खिलौनों की. रमकડાની दुकान एंड फ्रूट शॉप यानी कि ફળોની दुकान મેળામાં છે. देयर आर टी स्टॉल्स टू. ત્યાં ચાયની દુકાનો પણ છે. रानी एंड रहीम आर एट द फेयर. रानी और रहीम ये दोनों कहाँ पे हैं? मेले में है. रानी इज 5 years old. और रानी कितने साल की है? यस, 5 years old એટલે કે 5 વર્ષની છે. रहीम इज स्टडीइंग इन द स्टैंडर्ड 5. अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि रानी 5 years की है और रहीम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है. दैट मींस के आपके जितना. आप लोग भी स्टैंडर्ड 5 में हो, राइट? सो रानी कितने साल की है? 5 years की. और रहीम
5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, दैट मीन्स के ऑलमोस्ट 10 साल का हुआ। ओके, सो अब आपको पिक्चर्स दिख रहा है कि मेले में कितनी सारी शॉप दिख रही है, फ्रूट शॉप दिख रही है, बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं, औरतें दिख रही हैं, राइट। और आपको नीचे बलून वाला भी दिख रहा है, वहां पे गरम चाय लिखा हुआ स्टॉल दिख रही है, राइट। सो जंप ऑन द नेक्स्ट पेज। रानी सेज, इज देयर अ बलून मैन इन द फेयर? बलून मैन मतलब फुग्गा वाड़ो, बलून मैन, बलून मैन मतलब फुग्गा वाड़ो। तो रानी ने क्या पूछा रहीम से कि इज देयर बलून मैन इन द फेयर? सो मेड़ामा फुग्गा वाड़ो छे? तो रहीम ने बोला यस देयर इज, हाँ है। तो रानी ने बोला वेयर इज ही? आपको याद है हमें ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 सीखा था वेयर, यानी जब आपको कोई प्लेस के बारे में जानना होता है वेयर से क्वेश्चन कर सकते हो। तो रानी ने यहाँ पे सेम वही पूछा कि वो कहाँ है, तो किसके बारे में पूछ रही है? यस, बलून मैन के बारे में। रहीम ने बोला लुक ही इज नियर द टी स्टॉल। तो देखो आपने वेयर से क्वेश्चन किया तो नियर से आंसर आया उसका कि जो ते टी स्टॉल नी नजीक छे, એટલે ચાની દુકાનની નજીક છે। रानी सेज अखिल हु आर दोस चिल्ड्रन? अब उनके साथ जो फ्रेंड्स गए हैं तो उसमें से एक अखिल होगा, तो उसने पूछा अखिल से कि ये जो बच्चे खड़े हैं वो बच्चे कौन है? तो रहीम ने बोला दे आर माय नेबर्स। क्या है? नेबर्स એટલે કે પડોશીઓ। नेबर्स એટલે કે પડોશીઓ, આ મારા પડોશીઓ છે। नेबर्स એટલે પડોશીઓ। तो क्या बोला? दे आर आशिफ, जोसेफ, वेदांत, भाविक एंड नचिकेता। तो ये रहीम ने उसको बताया कि जो बच्चे खड़े हैं वो हमारे पड़ोसी हैं और उनके नाम भी उसने बताया। रानी सेज व्हाट आर दे लुकिंग एट? लुकिंग એટલે જોઈ રહ્યા છે, તે શેની તરફ જોઈ રહ્યા છે? तो रहीम ने बोला कलरफुल बलून्स। बलून्स એટલે फुग्गा। तो वो किसकी तरफ देख रहे हैं? सारे के सारे बच्चे बलून्स की तरफ देख रहे हैं। नीचे रानी सेज व्हाट इज दैट रहीम? आ શું છે रहीम? तो रहीम ने बोला इट इज कॉल्ड अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड मतलब, मैरी गो राउंड मतलब चकडोर। इट इज स्मॉल। और ये जो चकडोर आपको दिख रही है पिक्चर में वो कैसी है? स्मॉल એટલે કે નાની છે। लुक एट द जायंट व्हील नियर द मैरी गो राउंड। जायंट व्हील એટલે કે મોટી ચકડોળ। જાયंट व्हील એટલે जायंट व्हील એટલે મોટી ચકડોળ। तो उसको क्या बता रही कि पहले जो आप पूछ रहे हो वो है मैरी गो राउंड मतलब चकडोળ એટલે કે નાની ચકડોળ, અને એની જ બાજુમાં શું છે? મોટી ચકડોળ, અને તે કેવી છે? હ્યુજ એટલે કે વિશાળ, મોટી છે। रानी सेज लेट्स बाय आइसक्रीम। रानी ने कहा चलो आइसक्रीम खरीदते हैं। वेयर इज द आइसक्रीम स्टॉल? आइसक्रीम की दुकान क्या है? तो रहीम ने कहा इट इज अंडर दैट ट्री नियर द जायंट व्हील। જ્યાં મોટી ચકડોળ છે તેની બાજુમાં એક ઝાડ છે અને તેની નીચે आइसक्रीम वाला उभो छे। तो रानी सेज लेट्स गो देयर। चलो चलते हैं। आई विल टेक अ बिग कप। और मैं बड़ा कप लूंगी आइसक्रीम का। रहीम सेज ओके। छोटे बच्चों को तो पता ही है कि आइसक्रीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। जंप ऑन द नेक्स्ट पेज। रानी सेज हु इज दैट मैन? पहलो मानस कौन छे? रहीम सेज ही इज अ जगलर। जगलर मतलब जादू करना, जादूगर जिसको हम बोलते हैं। तो जगलर मतलब जादूगर अथवा हाथ चालाकी करना। जादूगर अथवा तो हाथ चालाकी करना, ये दोनों ऑप्शन में
किया है, ठीक है। सो ही इज अ जगलर, जगलर मतलब हाथ चालाकी करना। दैट इज अ बॉक्स इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक बॉक्स है। इट इज एम्प्टी, एम्प्टी એટલે કે ખાલી। એ શું છે, એ બોક્સ જે છે એ કેવું છે, खाली, राइट। देयर आर बॉल्स नियर हिम, और उसके पास में आपको दिख रहे हैं बॉल्स पड़े हैं। बॉटल्स आर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर क्या है, बॉटल्स पड़ी है, एज यू सी इन द पिक्चर। रानी सेज रहीम लुक एट दैट गर्ल, रहीम वो लड़की को देखो तो, शी इज अ रॉक वॉकर। रॉक वॉकर मतलब रॉक वॉकर, दोरी पर, दोरी चालक अथवा तो दोरी पर ચાલના। તો રોપ વોકર, शी इज ऑन दैट रॉक, रॉप એટલે કે દોરી જે તમે જોઈ રહ્યા છો પિક્ચરમાં। देयर इज अ लॉन्ग बैम्बू इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक बैम्बू यानी बांसनो लाकड़ो છે। दैट इज हर फादर, और वो फादर है उसके। कौन है उसके फादर, कि दैट इज हिज ड्रम, और जो नीचे ड्रम बजा रहा है वो शायद उसके फादर એટલે કે એના પિતા છે। और उसके हाथ में क्या है, ड्रम એટલે કે ઢોલક છે। रहीम सेज वाओ इट्स अ वंडरफुल ट्रिक, वंडरफुल मतलब अद्भुत, वंडरफुल मतलब अद्भुत। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल ट्रिक, सो अद्भुत ट्रिक છે આ। बक्षीपुर फेर इज अ लवली फेर, बक्षीपुर मेळो जे હતો એ બહુ જ સુંદર એટલે કે બહુ જ મજા આવે એવો હતો। सो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 4 भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट यानी हमारा यूनिट 2 जो है वो पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंसेप्ट।